ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਟਨਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ। 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਅਟਲ ਟਨਲ, ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए ने। तो प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी, कहां पर पहुंचा है प्रधानमंत्री का काफिला? ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਲ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਟਨਲ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਸੂ ਦੇ ਵੱਲ 15 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਸੂ ਅਤੇ ਸੋਲੰਗ ਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ 2 ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਇਥੋਂ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲਣਗੇ। 5000 ਵਾਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ। 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ, 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਲੇਹ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 13050 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 3 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਮਨਾਲੀ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਅਟਲ ਟਨਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਬੂੰਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਟਲ ਟਨਲ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨਾਲੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। तो सीधा रुख करते हैं प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तो प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कहां पर पहुंचा है प्रधानमंत्री का काफिला और कितना इंतजार? देखिए अमृत, अभी कुछ देर पहले ही सोलंग वैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरा है,
सोलंग में जिस स्थान पर इस वक्त हम हैं उसके साथ में ही सोलंग सड़क जाती है जो सीधी साउथ पोर्टल के लिए जाती है। और अभी कुछ देर पहले ही यानी 1-2 मिनट पहले कह सकते हैं हम कि यहाँ से काफिला गुजरा है और साउथ पोर्टल पहुंचने ही वाला है। वहां पर उनका स्वागत होगा बीआरओ की तरफ से और जैसे ही स्वागत की रस्म पूरी होगी तो लोकार्पण की रस्म शुरू होगी, क्योंकि 3 कार्यक्रम कुल मिलाकर ये हैं, जिसमें एक बीआरओ का कार्यक्रम है जो साउथ पोर्टल में होगा और दूसरे जो प्रदेश सरकार की तरफ से कार्यक्रम है, एक सिस्सू में छोटी सी जनसभा है और दूसरी यहाँ पर सोलंग नाला में जनसभा होनी है। हालांकि अभी क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा है और कुछ देर में वो पहुंचेंगे तो वहाँ की भी तस्वीरें जो है वो वहाँ की तस्वीरें भी हम कह सकते हैं कि वो दर्शकों को दिखाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर साउथ पोर्टल में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहाँ जो प्रावधान किए गए हैं उसमें बीआरओ ने वो सारा कार्यक्रम अरेंज किया है और उसके साथ साथ टनल को लेकर क्या टनल की खूबियां हैं वो बताई जाएंगी। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री क्योंकि सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो उनको जो यहाँ की ब्यूटी है वो भी दिखाई जाएगी, साथ में ही पर्यटन से जुड़े और क्या काम कुछ होने हैं ये भी प्रदेश सरकार की तरफ से उनको बताया जाना है। हालांकि पहले एक कार्यक्रम ये भी था कि कुछ एक पर्यटन स्थलों का उनको एक जो है यहाँ पर मानचित्र जैसा दिखाया जाना था, लेकिन उसमें उस कार्यक्रम में थोड़ी कटौती कर दी गई थी, प्रधानमंत्री के पास समय कम है। तो ऐसे में अब वो सीधे वहां पर जाएंगे और उस टनल के बारे में जायजा लेंगे और उस टनल को भी वो जो है वो गाड़ी के माध्यम से ही पार करेंगे और जब वो नॉर्थ पोर्टल में पहुंचेंगे तो उस दौरान वहां पर जो एक बस है वो इसका इंतजाम किया गया है, उसमें लाहौल स्पीति के जो बुजुर्ग हैं उनको उसमें जो है वहां से रवाना किया जाएगा मनाली की तरफ। और जब टनल से गुजरेंगे प्रधानमंत्री तो निश्चित तौर पर वहां टनल के अंदर की जो इंजीनियरिंग है उसको भी देखेंगे, बीआरओ भी उन्हें बताएगी कि क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है, किस तरह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, आपातकालीन की स्थिति में क्या चीजें हैं और जिस तरह से टनल के नीचे एक और टनल है उसके भी जरूर दीदार वहां पर करवाए जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम होने हैं बीआरओ की तरफ से। और बीआरओ के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जो है वो सिस्सू पहुंचेंगे, करीब 11 बजे का समय जो है वो रखा गया है, टेंटेटिव टाइम 11 बजे का है। तो सिस्सू में छोटी सी जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधे यहाँ पर सोलंग नाला आएंगे और यहाँ पर भी 1 बजे के आसपास पहुंचने का कार्यक्रम है। तो इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी क्योंकि सुरक्षा कारणों से अभी किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा हुआ है। जो आम लोग यहाँ पर आना चाहते थे उनके लिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस समय के भीतर वो यहाँ पर पंडाल में आ सकते हैं। जिसको पास जो है इशू किए गए हैं उसमें चाहे विधायक है, मंत्री हैं या फिर जो और लोग स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पर स्वागत भी जो स्थानीय विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, वो उनका स्वागत करेंगे क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र को वो ही प्रतिनिधित्व जो है वो देते हैं। तो ऐसे में ये तमाम कार्यक्रम अभी होने हैं और इंतजार किया जा रहा है टनल के उद्घाटन का। और एक लंबे अरसे के बाद 10 साल का जो इंतजार करना पड़ा है वो आज 10 साल का इंतजार पूरा हो गया है और वो पल भी आ गया है जब ये देश को समर्पित होगी टनल। हमारी सेना के लिए भी ये टनल मददगार साबित होगी और इसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी, खासतौर पर जो लाहौल स्पीति की 30,000 की आबादी है उसके लिए ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उन्हें जो है वो सर्दियों में जब बर्फबारी होती है तो वो अब शेष दुनिया से कटेंगे नहीं, बल्कि टनल के जरिए उनका आना जाना जारी रहेगा। हालांकि टनल के जो साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल हैं यहाँ पर भी बर्फबारी होती है, 4 से 5 फीट तक बर्फबारी कई बार हो जाती है, लेकिन उसको जो है हटाया जा सकता है, उसकी स्नो कटिंग आसानी से हो सकती है। उसके लिए भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो उस टनल को भी उस टनल के दोनों छोर पर प्रदीप, अगर बात की जाए सेना की दृष्टि से, हमने बात कर ली लाहौल स्पीति और मनाली के लोगों के लिए किस तरह से ये वरदान साबित हो रहा है वो भी बात कर ली, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश के लिए ये काफी बड़ा दिन, आज 10 सालों का इंतजार जो खत्म होने जा रहा है। और अगर बात की जाए प्रदीप, टूरिज्म की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मनाली जो है वो पर्यटकों की पहली पसंद हमेशा से रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टूरिज्म भी अब और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोग हैं काफी उत्साहित हैं इस टनल को देखने के लिए, इस सुरंग के बीच में से गुजरने के लिए। बिल्कुल अमृता, आपने सही कहा। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगी टनल और ये पर्यटन को भी पंख लगाएगी और इसके 2 फायदे पर्यटन के लिए रहेंगे। एक तो रोहतांग के लिए जो पर्यटक आमतौर पर जाता है उसे अब जाम में या भीड़ में नहीं फंसना होगा।
क्योंकि जो लाहौल स्पीति के लोग हैं या उनके जो जब गर्मियों में वो अपना सामान लाते हैं, चाहे वो मटर है, गोभी है या फिर और जो फसलें हैं, उसको जब वो रोहतांग दर्रा से लाते हैं तो जाम लगा रहता था, बसें वहां से चलती थी। अब वो सारा काम टनल से होगा, तो ये एक तरह से सिर्फ पर्यटन डेस्टिनेशन यानी पर्यटन स्थल ही रहेगा रोहतांग। तो ऐसे में पर्यटक सीधा रोहतांग जा सकेगा और ये भी एक व्यवस्था की जा रही है जो आने वाले समय में प्रस्तावित है कि जो पर्यटक है वो रोहतांग दर्रा को जाएगा और वापसी उसकी टनल से होकर होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटकों के लिए भी टनल के जरिए आना एक अपने आप में एक नया अनुभव होगा। और इसी तरह से जो लाहौल स्पीति है वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है सर्दियों के लिए भी। और जिस तरह से कहा भी जा रहा है और वहाँ पर देखा भी जाता है कि जो जब सर्दियां होती हैं, बर्फबारी जब उस तरफ हो जाती है लाहौल स्पीति की तरफ से, तो बहुत अच्छी स्की दिलाने वहाँ पर है। तो विंटर स्पोर्ट्स की वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जब भी सर्दियों में ऐसी बर्फबारी होगी तो जिस तरह से सोलंग वैली है, सोलंग नाला है, यहाँ पर स्कीइंग होती है, उससे अच्छी स्कीइंग वहाँ पर लाहौल स्पीति में होगी। तो वो भी एक पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल के तौर पर जब विकसित होगा तो लोगों के लिए भी काफ़ी जो है आर्थिकी उनकी सुधरेगी, पर्यटकों को नया स्थान घूमने के लिए मिलेगा। और इसी तरह से जो मनाली में है, मनाली एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे इस क्षेत्र का एक हेडक्वार्टर टाइप में हो जाएगा। जो चाहे वो लाहौल स्पीति जा रहा है, चाहे वो इसके दाएं बाएं के कहीं जा रहा है, तो वो बाद में आकर यहाँ लाहौल स्पीति जो घूम के आएगा वो बाद में यहाँ पर मनाली में ही रुकेगा। प्रदीप, तो सेना की दृष्टि से देखा जाए या पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी जो है कह सकते हैं कि लाभदायक साबित होने वाला है। लाहौल स्पीति के लोगों की बात की जाए, मनाली के लोगों की बात की जाए, तो प्रदीप मैं चाहूंगी कि दर्शकों को तस्वीरें आप लगातार जो है वो दिखाते जाएं कि किस तरह की तैयारियां जो की गई हैं, किस तरह के जो उत्साह है वो लोगों में वहां पर पाया जा रहा है। लगातार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਟਲ ਟਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ। तो दस दईए कि अटल टनल जिस दे विच खास विशेषतावां ने पूरी तरह सुविधावां दे नाल लैस है, विशेषतावां दे नाल भरपूर है। मुख सुरंग दे हेठा एक एमरजेंसी एस्केप सुरंग भी शामिल है जिहड़ी किसी अनसुखावी घटना की स्थिति दे विच एमरजेंसी निकास भी प्रदान करेगी। तो इस तो इलावा सुरंग दे विच हर 150 मीटर की दूरी ते एक टैलीफोन की व्यवस्था की गई है। हर 60 मीटर ते फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गई है तां जो किसी अनसुखावी जो घटना दे विच उस नाल नजिठिया जा सके। 500 मीटर के अंदर एमरजेंसी निकास है। हर 250 मीटर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ने। अज 3300 करोड़ की लागत के नाल करीब 10 सालों के पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट जिहड़ा है वो पूरा तैयार हो चुका है। तो कुछ ही पलों के प्रधानमंत्री दे वल्लों देश नूं समर्पित कर दी जाएगी ये सब तो उच्ची अटल टनल दुनिया की। तो लोगों के विच उत्साह पाया जा रहा है। सेना के लिए ये काफ़ी राहत है, खास तौर पर लाहौल स्पीति के लोगों के लिए किसी वरदान तो घट नहीं है। और लोग जिहड़े 6 महीनों के लिए देश के नालों कट जाते सी। इस तो इलावा जिहड़े व्यापारी ने उन्होंने काफ़ी मुश्किल आउंदियां सी। तो हर लिहाज तो ये अटल टनल जिहड़ी है वो वरदान साबित होगी। इस तो इलावा जेकर गल की जाए सैलानियों की, तो सैलानियों के पक्षों भी इसनूं काफ़ी अहम मन्निया जा रहा है क्योंकि वड्डी गिनती दे विच सैलानी इसनूं देखण दे लई भी आउणगे। इस सुरंग के जरिए जो है वो अपनी रस्ता किन्ना है, किस तरह का रस्ता है, किस तरह का अंदर का नज़ारा है उसनूं भी हर कोई देखना चाहेगा, सफ़र करना चाहेगा। तो इस दे लई ये मन्निया जा रहा है कि आने वाले दिनों के विच सैलानियों की गिनती भी मनाली वधेगी। हालांकि पहली पसंद मनाली हमेशा ही सैलानियों की रहा है पर हुण होर भी ज़्यादा सैलानी इत्थे अटल टनल दे करके भी आउणगे। इस तो इलावा सेना के पक्षों देखा जाए तो सेना नूं काफ़ी मुश्किल आउंदी सी क्योंकि जो बर्फबारी के दौरान एक पासे लाहौल स्पीति देश के नालों कट जाता सी, सेना नूं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैंदा सी। सेना की ताकत हुण होर भी ज़्यादा वध गई है। दुश्मन देशों के लिए भी एक चुनौती है। तो थोड़ी ही देर दे विच इत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करनगे तो देश नूं समर्पित कर दी जाएगी दुनिया की सब तो उच्ची टनल। दस दईए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नाल मौजूद ने। हुण तो थोड़ी देर पहला जो एक सैलीब्रेशन लैब का उन्हां दे वल्लों उद्घाटन भी किया गया है। तो लगातार असीं अपने दर्शकों को तस्वीरां भी दिखा रहे हैं तो विशेषतावां भी दस रहे हैं इस अटल टनल दियां जिहड़ी कि पूरी तरह खूबियां दे नाल लैस है। तो हिमाचल प्रदेश के
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾकुर ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਨਲ ਹੈ ਅਟਲ ਟਨਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣ ਕੇ पूरी तरह तैयार हो चुकी है। प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर बात की जाए, हालांकि इंतजार तो काफी लंबे समय से था और जो एक उम्मीद की जा रही थी तो इतना समय शायद सोचा भी नहीं था लग जाएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 4 के करीब साल तो जो है वो एक जो नाले का काम था उसको पूरा करने में लग गए, और उसके बाद जो कोरोना महामारी के कारण भी ये काम काफी समय तक प्रभावित हुआ है। बिल्कुल अमृत, देखिए हालांकि जिस तरह से सेरी नाले की बात है, वो सेरी नाला जो है उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है काम, क्योंकि लगातार पानी का बहाव वहाँ पर था, तो बहाव बहुत ज़्यादा रहता था, तो उसको ठीक करने में ही 4 से 4.5 साल का वक्त लगा है। अन्यथा ये टनल बहुत पहले बन जाती और बहुत पहले देश को समर्पित होती। हालांकि कोरोना का भी असर पड़ा है, लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि तब तक निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। तो ऐसे में अब क्योंकि टनल का जो है वो विधिवत उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री कुछ देर में साउथ पोर्टल में पहुंचने वाले हैं। वहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर वो भी उनका स्वागत वहां पर वो करेंगे, और उनके साथ साथ विभागों के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। तो वहीं पर सारा कार्यक्रम होगा और उसके बाद वो सीधा सिस्सू के लिए रवाना होंगे, यानी नॉर्थ पोर्टल के लिए रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह से टनल के लिए कह सकते हैं कि लगातार इसको ये सुर्खियों में ये टनल रही है, और इसको घोड़े की नाल की तरह ये टनल का जो प्रवेश द्वार है, तो इस टनल का आकार घोड़े की नाल की तरह है, और ये अपने आप में एक अलग से तकनीक से बनी ये टनल है। और इसका जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि सामरिक और सैन्य महत्व तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा और सीधा असर अभी जिसको पड़ेगा वो लाहौल स्पीति के लोगों को इसको सीधा फायदा होगा। हालांकि ये एक मील का पत्थर साबित होगा सैन्य ताकतों को वहां पर सीमा तक पहुंचने के लिए।